Hello dear students. From today onwards, we will start unit number 3, and from the unit number 3, the first term we can call that has to be going to started from today, that is heroic couplet. First of all, we will know what is meant by heroic and couplet. So couplet means in a poetry, if there are two lines occurs, that can be called couplet. You should know it. Let me come to Hindi. It will be in a bilingual mode. The lecture will be in bilingual mode, English and Hindi. अगर एक पोएम में दो लाइंस है, so that two lines can be called couplet. And what is meant by heroic here? The poetry which is written in a heroic form. Say for example, just take an example of Ramayana. Take an example of Mahabharata. These are heroic poetry. Actually, they are epic. So epic poetry can be considered as heroic poetry again here. See, so a heroic couplet consists of two lines. Number one, in couplet it will be rhyming together. At the end of the lines there will be rhyming words. The first line's last word and the second line's last word will be rhymed with each other. That has to be kept in mind. Next thing is that iambic pentameter. In heroic couplet there must be iambic pentameter. Now I will talk about iambic pentameter in the next slide. Before that, we will see it was so called. It was so called means it was called heroic couplet because its frequent use in heroic poetry and drama. तो जो heroic poetry है यानी कि epic है और ड्रामा जो है, नाटक जो है, उसमें ज्यादातर इसका यूज होता था, हीरोइक पोइट्री में यूज होता था. और ये हीरोइक पोइट्री की जो नाम दिया है उसी के कारण इसे हीरोइक कपलेट ऐसे भी कहा जाता है, बिकॉज हीरोइक पोइट्री एंड ड्रामा वाज देयर. सो मोस्ट ऑफ द राइटर्स यूज्ड इट, frequently use it in their heroic poetry. Say for example, Alexander Pope is there, Geoffrey Chaucer is there, John Dryden is there. There are so many poets who used it in their poetry, as well as Shakespeare also. William Shakespeare also used it in his drama. It was about the poetry and drama. Now, after this, we will talk about the first person who has used it, who has introduced it to English poetry. So, the first person into English poetry, the first introduction was there in English poetry by the poet called Geoffrey Chaucer. You should note down this name, Geoffrey Chaucer. So Geoffrey Chaucer is the first person who used this in English. Okay, before that maybe there were some of the poets in French, in Greek, but as far as English literature is concerned, in English literature, the first poet who used it, who introduced is Geoffrey Chaucer. And you know, Geoffrey Chaucer is also called father of English poetry. सो जॉफ्री चौसर ने इसे सबसे पहले इंग्लिश पोएट्री में यूज किया है. और जो पोएम जो है यूज करने वाली वो है द कैंटरबरी टेल. द कैंटरबरी टेल्स इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, द नेम ऑफ द पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ बुक. So it is about Geoffrey Chaucer. Now in the next slide we will talk about, as I already told you, iambic pentameter. तो
आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में अगर जानेंगे तो यू कैन सी ओवर हियर देयर आर iamb. The first thing is iamb, second thing is penta, and third thing is meter. So we will first of all know what is meant by iamb, what is meant by penta, what is meant by meter, and what is meant by syllable, because these all the terms are related to iambic pentameter. Okay, so classification is very important here. So look, the first one is iamb. सबसे पहले देखेंगे कि iamb यानी कि क्या है, बिकॉज मैंने पहले कहा है कि ये जो है हीरोइक कपलेट जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर पे बेस्ड है. अगर आयम्बिक पेंटामीटर नहीं है तो उसे हीरोइक कपलेट नहीं कह सकते. सो आयम्बिक पेंटामीटर अगर एक लाइन में है, अगर 2 लाइंस में है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज हीरोइक कपलेट. ओके, सो हीरोइक कपलेट में, हीरोइक कपलेट तो हमने जाना है कि हीरोइक कपलेट मतलब क्या, तो 2 लाइन की पोएम है. सॉरी, 2 लाइन की पोएम नहीं, एक पोएम में दो लाइन का स्टांजा है, तो स्टांजा ऑफ 2 लाइंस मींस कपलेट हो गया. दैट इज ओवर. हीरोइक क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द हीरोइक पोएट्री एपिक में यूज किया है, इसलिए उसे हीरोइक कहा है. अभी आयम्बिक पेंटामीटर क्या है? व्हाट इज मीन बाय आयम्बिक? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज मीन बाय आयम्ब इज अ लिटरेरी डिवाइस that can be defined as foot containing unaccented and short syllable followed by a long and accented syllable in a single line of poem. So let us see what is meant by I am here. I am म्हणजेच काय तर लेट मी कम टू हिंदी अगेन. सो आई एम यानी कि क्या है? एक लिटरेरी डिवाइस है कि जो पोएम में यूज होता है. उसमें 2 तरह के सिलेबल यूज होते हैं, एक है शॉर्ट सिलेबल और दूसरा है लॉन्ग सिलेबल. पहला जो शॉर्ट सिलेबल रहेगा वो है अनस्ट्रेस सिलेबल, और दूसरा जो लॉन्ग सिलेबल है वो है एक्सेंटेड सिलेबल. वी कैन कॉल दैट स्ट्रेस सिलेबल. मतलब जब हम बोलते वक्त एक शब्द पे अगर ज्यादा जोर देते हैं तो दैट कैन बी कॉल्ड स्ट्रेस सिलेबल, और जो जिस पर कम जोर देते हैं बोलते वक्त, तो दैट कैन बी कॉल्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. स्ट्रेस देना यानी कि थोड़ा सा व्हाट वी कॉल आरोह एंड अवरोह. सो आरोह मतलब आवाज जब बढ़ जाती है तो दैट कैन बी कॉल्ड स्ट्रेस, एंड अवरोह मीन्स नीचे आना, डाउन, दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रेस. तो ये जानेंगे हम आई एम यानी कि क्या है इन द नेक्स्ट लाइन. जस्ट अ मिनट. ओके, सी आई एम. तो ये हो गया शॉल, ये एक आई एम हो गया, आई एक आई एम हो गया. ये आई एम जो है वो एक ही वर्ड में आ सकता है, एक वर्ड में 2 आ सकते हैं, एक वर्ड में 3 आ सकते हैं, या फिर एक वर्ड में एक भी आ सकता है. जैसे कि शॉल, शॉल इसमें एक आई एम है कि जो अनस्ट्रेस है. शॉल इट इज अनस्ट्रेस, मतलब कोई जोर देने की आवश्यकता नहीं बोलते वक्त, पर आई में जोर दिया है, यह स्ट्रेस. अभी कंपेयर, कंपेयर में कम इतना बोलो तो वो है अनस्ट्रेस, पर पेयर इसमें ज्यादा जोर दिया है बोलते वक्त, वो हो गया स्ट्रेस. अभी इसमें शॉल एक आयम है, आई एक आयम है, कंप एक आयम है, आर एक आयम है, दी एक आयम है, टू एक आयम है, अ एक आयम है, सम एक आयम है, और मर्स एक आयम है, डे एक आयम है. सो यहां पर हो गए 10 आयम. 2 आयम का एक सिलेबल, सॉरी व्हाट वी कॉल एक मेट्रिकल फुट, वी कैन कॉल मेट्रिकल फुट, और एक लाइन में रहेंगे 5. सो लेट अस सी. इसे पेंटामीटर, ये 5, एक लाइन 5 चीजों में डिवाइडेड क्यों है? बिकॉज ऑफ पेंटामीटर. ओके, सो सबसे पहले जानेंगे आयम. तो हमने जान लिया है कि आयम का मतलब है कि पहला जो सिलेबल है वो है अनस्ट्रेस, जिसमें कोई जोर नहीं दिया है. दूसरा जो सिलेबस है वो है स्ट्रेस. ओके, सो पेंटा मीन्स व्हाट? पेंटा मीन्स 5. पेंटा का मतलब है 5. ओके, सो 5 आयम एक लाइन में रहना, जैसे कि शॉल आई एक आयम, एक कंपेयर, दी टू, असम एंड मर्ज दे. ओके, सो दे 5 चीजों में, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा,
ये चौथा और ये पांचवा। ओके, पांच हिस्सों में एक लाइन डिवाइडेड होना यानी कि पेंटामीटर। ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय सिलेबल? सिलेबल क्या है? इट इज नॉट लाइक योर सिलेबस। सिलेबस हैज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी and syllable is a different terminology as far as English literature is concerned. So syllable means a single unit of speech, either a whole word or one of the part into which a word can be separated, usually containing a vowel sorry। इसमें देखो, एक वर्ड या एक वर्ड है या फिर उस वर्ड का पार्ट है, जैसे कि जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। ओके, एक तो एक वर्ड है या फिर वर्ड के पार्ट्स है। ओके, सिलेबल का मतलब जान रहे हैं हम। इसमें शॉ एक सिलेबल है, आई एक सिलेबल है, पर इसमें कंपेयर, सो कॉम एक सिलेबल है और आर एक सिलेबल है। तो सिलेबल जो है, एक तो पूरा का पूरा वर्ड रह सकता है या फिर वर्ड का एक छोटा सा पार्ट रह सकता है, ये पहले जान लो, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, व्हाट विल बी देयर? देयर विल बी वन वॉवल, एक वॉवल रहना जरूरी है और बाकी की कंसोनेंट तो रहेंगी। तो इसमें देखो, शॉल ए एक वॉवल है, आई में तो वॉवल है, कॉम्प में ए एक वॉवल है, आर में ये एक वॉवल है, डी में ये वॉवल्स है, टू में वॉवल है, अ में वॉवल है, एस यू एम सम एक वॉवल है, एम ई आर एस मर्स समर्स है एक्चुअली, तो ये एक वॉवल है, डे में ये एक वॉवल है। सो देयर विल बी वन, एट लीस्ट वन वॉवल इज कंपल्सरी। आई होप यू आर गेटिंग मी। ओके, सो आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब ये है, अ लाइन ऑफ वर्स, वर्स मतलब ओड, कवितेची ओड, अ लाइन ऑफ वर्स विथ 5 मेट्रिकल फीट। एक लाइन में, अ लाइन ऑफ वर्स मतलब एक लाइन, कविता की एक लाइन कि जिसमें 5 मेट्रिकल फीट है। ये वाला एक मेट्रिकल फीट है, ये दूसरा मेट्रिकल फीट है, ये तीसरा मेट्रिकल फीट है, ये चौथा मेट्रिकल फीट है और ये पांचवा मेट्रिकल फीट है। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो कितने मेट्रिकल फीट है? 5 मेट्रिकल फीट। ओके, 5 मेट्रिकल फीट आर डिवाइडेड इंटू 10 सिलेबल, क्योंकि शॉल एक सिलेबल हो गया, आई एक सिलेबल हो गया, कॉम्प एक सिलेबल हो गया, आर एक सिलेबल हो गया, डी एक सिलेबल हो गया, टू एक सिलेबल हो गया, अ एक सिलेबल हो गया, सम एक सिलेबल हो गया, मर्स एक सिलेबल हो गया और डे एक सिलेबल हो गया। तो कितने सिलेबल है? 10। एक मेट्रिकल फीट में 2 सिलेबल। पहला जो है वो है अनस्ट्रेस, दूसरा जो है वो है स्ट्रेस। आर यू गेटिंग मी? सो अगर एक लाइन में 5 मेट्रिकल फीट रहते हैं यानी कि 10 सिलेबल्स रहते हैं, और हर एक सिलेबल जो है, पहला जो है रहता है वो है शॉर्ट यानी कि अनस्ट्रेस, और दूसरा जो रहता है वो है लॉन्ग यानी कि स्ट्रेस। तो शॉ और आई, कॉम्प यानी कि आर, डी और टू, ओ सम, मर्स डे। ओके, सो फर्स्ट वन इज शॉर्ट और अनस्ट्रेस और सेकंड वन इज लॉन्ग यानी कि स्ट्रेस्ड। सो ये दो चीजें अगर है और 5 चीजों में अगर, 5 हिस्सों में अगर एक लाइन बटी है, तो दैट कैन बी कॉल्ड iambic pentameter. I hope you are getting me. Yeah, and all the lines will be इन iambic pentameter। एक अगर कविता है, कविता में अगर समझो 10 लाइन्स है, कविता में समझो अगर 100 लाइन्स है, तो 100 की 100 लाइन ये मीटर फॉलो करेगा, ये iambic pentameter फॉलो करेगी। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो ये एक एग्जाम्पल है, shall I compare thee to a summer's day? Actually this example is taken by written by, this is the line by Shakespeare's writing, शेक्सपियर ने लिखा है ये। shall I compare thee का मतलब है you, shall I compare you to a summer's day? This is the question arised. So ये डाडम 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 डाडम, नाउ दिस डाडम, डा यानी कि अनस्ट्रेस, डा मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है, छोटा सा सिलेबल है, डम यानी कि बड़ा सिलेबल है, शॉल आई, शॉल डा एंड डम मीन्स बिग, कॉम्प यानी कि डा,
दिस वन, एंड डम मीन्स बिग, दी यानी कि डा एंड टू मीन्स डम, सम यानी कि डा, सॉरी अ यानी कि डा और सम यानी कि डम, मर यानी कि डा और डे यानी कि डम। सो डाडम, शॉलाई डाडम, compare, comp da and dum dadum, d2 dadum, and a sum dadum, and merge day, that is dadum. So here, shall I compare, shall I compare the two, a sum, merge day? Okay, it is like that. So shall I compare the two, a summer's day? So in this way, this iambic pentameter is used. I hope you got it. Let me turn to the next slide. Okay, so Augustans actually those, the poet who were in Augustan age, Augustan age में जो poet हो चुके हैं, they usually has a use of pause at the end of the first line. जो Augustan age के जो poet थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा हटके लिखा. What they had done, they used comma at the end of first line. मतलब दो लाइन का एक कपलेट हो गया, तो पहली लाइन जो है उसके बाद में उन्होंने कॉमा यूज करना स्टार्ट किया. किन लोगों ने, किन पोएट्स ने, जो ऑगस्टन एज के पोएट है, और उनका जो मुखिया है वो है जॉन ड्राइडन. ओके, सो जॉन ड्राइडन मेड इट अ डोमिनेंट पोएटिक फॉर्म इन द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में, 18वें सेंचुरी में जॉन ड्राइडन में सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसे यूज करना चालू किया. और उसने एक मैक फ्लेक्नॉय नाम की एक जो पोएम है उसमें ज्यादातर यूज किया. लेट अस सी दैट एग्जांपल आल्सो. सी, अ रेस्ट टू सम faint meaning make pretense, but Shortwell never deviates into a sense. You can see on the page number 130. आप अपनी बुक में 130 पेज नंबर देख सकते हो. You can see this example there. The rest to some faint meaning makes pretense. Now pretense के बाद में कॉमा है. ओके, तो जहां जहां कॉमा आ रहा है वो है पॉज, जहां कॉमा आ रहा है वहां पर हम रुक रहे हैं. सो वेन एवर एट द एंड ऑफ द लाइन, और ये कॉमा कहीं भी आ सकता है, ये पॉज कहीं भी आ सकता है, बट ऑगस्टन के जो पोएट है, ऑगस्टन एज के जो पोएट है, उन्होंने एट द एंड ऑफ द लाइन यूज करना चालू किया. तो दिस कॉमा, दिस पॉज, जब पहली लाइन खत्म हो गई उसके बाद में हम थोड़ी देर रुके क्योंकि वहां पर कॉमा है, तो इस कॉमा को कहते हैं सेज्यूरा. द मीनिंग इज वेरी सिंपल माय फ्रेंड्स. सेज्यूरा मीन्स व्हाट, whenever in the line, in between the line or at the end of the line, if there is a comma, means there is pause, and that pause is nothing but called caesura. Okay, caesura means a pause in between a line or at the end of the line. तो ये जो दो लाइन का कपलेट है, तो फर्स्ट लाइन के बाद में कॉमा यूज करना स्टार्ट किया किसने, जॉन ड्राइडन ने, और उसे कहा गया सेज्यूरा. नेक्स्ट, और एक एग्जांपल, और एक बहुत बड़ा राइटर वी कैन कॉल, अ पोएट वी कैन कॉल, दैट इज अलेक्जेंडर पोप. सो अलेक्जेंडर पोप, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट सेमेस्टर अबाउट अलेक्जेंडर पोप. सो अलेक्जेंडर पोप has written two main specifically poems, the essay on criticism and rape of the lock, where he used in a general, mainly in rape of the lock, he used iambic pentameter. He used heroic couplet. Okay, so this is the information regarding heroic couplet. Let us come to know what we have learnt in the दिस लेक्चर. ठीक है, तो हीरोइक कपलेट यानी कि क्या, एक बार मैं समराइज कर रहा हूं 2 मिनट में. फोकस हियर. कपलेट यानी कि दो लाइन. एक पोएम में अगर 2 लाइन का स्टांजा अगर आता है तो दैट कैन बी कॉल्ड कपलेट. उसे हीरोइक क्यों कहा गया, क्योंकि
ये ज्यादातर हीरोइक पोएट्री में यूज हुआ है, ड्रामा में यूज हुआ है। इसका मतलब एपिक पोएट्री, एपिक जो है उसमें यूज हुआ है। ठीक है। और लास्ट में जो लाइन्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू हियर। ओके, या दिस वन। सो प्रिटेंस और सेंस, ओके, ये दोनों मैच हो रहे हैं, राइमिंग जुड़ रही है। प्रिटेंस राइम विथ सेंस, ओके। सो एट द एंड ऑफ द लाइन, whatever the word is given here in the first line and in the second line, they both are rhymed. Say for example, if there is a, if there is also a, अगर second stanza भी है तो वो होगा b, वो होगा b. Okay, are you getting me? So first lines last word and second lines last word are rhymed together. So that is very important over here, and that is must criteria for heroic couplet. तो क्या जाना हमने कि दो लाइन का एक स्टांजा है, दैट इज कॉल्ड कपलेट, कि जो राइम्ड हो रहे हैं, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हो रहा है और ज्यादातर हीरोइक पोएट्री में यूज हुआ है, ड्रामा में यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट। और पहला आदमी इंग्लिश, अगर ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, तो पहला जो आदमी है जिसने यूज किया है वो है जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर ने यूज किया है इंग्लिश पोएट्री में, और जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। कैंटरबरी टेल्स नाम की जो पोएम है, ये पूरी की पूरी हीरोइक कपलेट पर बेस्ड है। और आयम्बिक पेंटामीटर यानी कि क्या है, ये मैंने पहले ही बताया। आयम्बिक यानी कि आयम का मतलब है 1 फुट, वेयर शॉर्ट सिलेबल एंड लॉन्ग सिलेबल इज यूज्ड। पेंटा का मतलब है 5, सिलेबल का मतलब है सिंगल यूनिट, वेयर सिंगल यूनिट ऑफ स्पीच, की जो एक वर्ड के 2-3 टुकड़े भी हो सकते हैं, एक वर्ड में भी हो सकता है, ओके, जिसमें एक वॉवेल रहना मस्ट है, बाकी तो कंसोनेंट ही रहेंगे। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब है एक लाइन की जिसके 5 सेपरेट हिस्से हो सकते हैं, जिसमें 10 सिलेबल यूज हुए हैं। एक रहेगा, पहला रहेगा अनस्ट्रेस और दूसरा रहेगा स्ट्रेस। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, shall I compare the two, a summer's day, and this is dadam dadam dadam, this is the formula where one can uh, get it whether it is iambic pentameter or not. Dadam is used for your understanding, nothing else. And John Dryden also used it in 18th century. And as far as if we talk about Alexander Pope, he also used mainly heroic couplet. Okay, so with this we stop here. If you have any query, you can ask me in a comment box, or you can ask in a WhatsApp group or our Google Classroom also. Okay, friends, as you all know, we have completed our unit number 4. So we will have a test soon. I will announce a test. Please read all the material, all the notes provided in the last videos, and we will have a test based on unit number 4. Thank you for watching.